السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ مدنیہ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے فضل ہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہی کی وجہ سے سورۃ الفاتحہ ہمارے خیال کے مطابق، ہمارے زعم کے مطابق ختم ہوئی۔ اب دوسری صورت ہے، قرآن کی دوسری صورت ہے سورہ بقرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس میں اس کے نام سورہ بقرہ اس لیے رکھے ہیں کہ اس صورت کا نام سورہ بقرہ اس لیے رکھے ہیں کہ احادیث سے اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے آثار سے، ان کی باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بقرہ کا ذکر اس صورت میں بہت سارے چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اکثر جو نصیحت کے لائق ہے، جو عبرت کے لائق ہے، وہ یہی قصہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس لیے اس کا نام کیا رکھے ہیں؟ سورہ بقرہ رکھے ہیں۔ اور اس میں 280 پر 6 آیتیں ہیں، 280 پر 6 آیتیں ہیں، کلمے 6221 6221 اور حرف، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، ایسے حروف 25,500 ہیں۔ کہتے ہیں 25,500 ہیں۔ اور 6221 کلمہ کہتے ہیں جس سے سننے والے کو فائدہ ہو، جس سے سننے والے کو فائدہ ہو، ایسے کلمے 6221 ہیں، اور حروف 25,500 ہیں، 25,500 ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے، یعنی اکثر اس کی آیتیں، بہت ساری آیتیں مدینے میں نازل ہوئی۔ ان میں سے بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، لیکن میں شروع میں بول دیا تھا کہ ہجرت کے بعد جتنا بھی قرآن اترا ہے عربی باسب میں، چاہے وہ صورت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آیتوں کے اعتبار سے ہو، وہ سب کیا ہے؟ مدنی ہے۔ ہجرت سے پہلے جتنے بھی آیتیں اتری ہے وہ مکی کہلاتی ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کہیں دور گئے تھے، سفر میں یا جنگوں میں گئے تھے، یا فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے، لیکن دنیا سے جاتے وقت مدینے میں تھے۔ لیکن جب مکہ آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں بھی قرآن کی آیتیں اتری، لیکن ان سب کو کہا جاتا ہے مدنی۔ اس لیے اکثر آیتیں مکے میں نازل ہوئی، لیکن سب سے زیادہ آیتیں سورہ بقرہ کی کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں نازل ہوئی، اس لیے اسے مدنی کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے۔ 114 سورتوں میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ ہے۔ اور مدینے میں سب سے پہلے اسی کا نزول شروع ہوا، یعنی اسی کے بارے میں شروع ہوا۔ مختلف زمانے کے اعتبار سے دیکھو، قرآن نے وقت کو پکڑ کو، حکم کو پکڑ کو، ٹائم کو پکڑ کو، موقع کو پکڑ کو، محل کو پکڑ کو اور اترتا تھا۔ مثال کے طور پر سود کے بارے میں کچھ پوچھے، سود کے بارے میں اترتا، شراب کے بارے میں کچھ پوچھے، شراب کے بارے میں اترتا، ذوالقرنین کون کو پوچھے، ذوالقرنین کے بارے میں اترتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع کو دیکھو، محل کو دیکھو، وقت کو دیکھو، مختلف زبانوں میں، مختلف اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اتارے۔ ایسا قرآن 23 سال میں اترا ہے۔ کیسے سال میں؟ 23 سال میں اترا ہے۔ تو اس میں سے چند آیتیں ہیں جو مکے میں نازل ہوئی،
रिबा यानी सूद की जो आयतें हैं, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र, फतह मक्का, जब मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी उम्र, उस वक्त नाजिल हुई है सूद की आयत, आखिरी वक्त में, अरे बासद में। और इसकी एक आयत है वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ये कुरान की सबसे आखिरी आयत, इसके बाद कोई सी आयत भी नाजिल नहीं हुई। सूरह बकरा ख़त्म होने से 2 सफ़े पहले से आखिरी सफ़े में ये आयत आती, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। ये जो आखिरी आयत है, कुरान की सबसे आखिर में उतरने वाली ये आयत, इसके बाद कुरान बिल्कुल ख़त्म हुआ, उतरना ख़त्म हो गया। 21 आयत आखिर में उतरी, वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। डरो उस दिन से जिस दिन में तुम सबको लौटाया जाएगा अल्लाह की तरफ। फिर क्या करेगा अल्लाह? सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अल्लाह तबारक व तआला हर उस चीज़ का बदला पूरा का पूरा देंगे जो तुम करके आए हो, जो वो करके आए। समझना, ये कुरान की सबसे आखिरी आयत। लेकिन ये आयत सूरह बकरा में है। सूरह बकरा मदनी है, लेकिन यह आयत उतरी सो मक्के में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यह आयत उतरी सन 10 हिजरी में। 10 ज़िल्हिज्जा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में थे, आरे बासद में बातें समझा रहे थे, खुतबा समझा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के फ़राइज़ अदा करने में मशगूल थे। उस वक्त ये आयत हुई, ये आयत नाजिल हुई। लेकिन फिर भी इस सूरत को मदनी कहा जाता है, मक्की नहीं कहा जाता। फजीलत क्या है इसकी? मैं तो बोल दिया कि आखिरी आयत, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला ख़त्म हो गया, वहाँ से बंद हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर वही नहीं है कुरान की। सूरह बकरा की फजीलत क्या है? यह कुरान की सबसे बड़ी और बहुत से अहकाम पर मुश्तमिल वाली सूरत है। बहुत से अहकाम इसमें है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह बकरा को पढ़ा करो, सूरह बकरा को पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बरकत है। सूरह बकरा का पढ़ना बरकत है, और इसका छोड़ना, सूरह बकरा को पढ़ना छोड़ देना हसरत और बदनसीबी है, पछतावा और बदनसीबी है। सूरह बकरा को पढ़ा करो। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला से मनक़ूल है, इस जगह अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं। मुराद यह है कि इस सूरत के पढ़ने वाले पर किसी का जादू ना चलेगा और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक बात भी बताए थे जो मैं छोड़ दिया था, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इस सूरत को पढ़ने वाले पर अहले बातिल काबू पा नहीं सकते। अब अहले बातिल से कौन मुराद? हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अहले बातिल से मुराद जादूगर हैं। कोई भी मुसलमान, कोई भी मोमिन सूरह बकरा को पढ़ता है तो उस पर किसी जादूगर का जादू असर नहीं करता। समझ आ रही है बात? इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरतुल बकरा की एक एक आयत के नुज़ूल के वक्त 70 हज़ार फरिश्ते उतरते थे। एक एक आयत को लेकर सूरह बकरा की कितने फरिश्ते? 70 हज़ार फरिश्ते उतरते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला के एक हदीस में है कि इस सूरत में एक ऐसी आयत है जो तमाम आयत कुरानिया में सबसे अफजल और अशरफ है, और वो है आयतुल कुर्सी। तो आयतुल कुर्सी भी कौन से सूरह में है? सूरह बकरा, पारा नंबर 3 के शुरू पहले सफ़े में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम में, कुरान करीम की जितनी भी आयतें हैं, 6000 से ज़्यादा जितनी भी आयतें हैं, उन सब आयतों में सबसे अफजल और अशरफ आयत कौन सी है? आयतुल कुर्सी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद पढ़ा करो। हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला कभी भी जहन्नम में नहीं जाएगा। अरे बस। इसी तरह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सूरह बकरा की 10 आयतें हैं। सूरह बकरा की 10 आयतें हैं। अगर कोई शख्स इनको रात में पढ़ ले सोते वक्त, तो उसको जिन शैतान का असर नहीं होगा और उस घर में जिन्नात और शैतान भी दाखिल
نہیں ہوں گے جو رات میں پڑھ لیتے ہیں، اور اس کو اس کے گھر والوں کو اس رات میں کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی رنج، کوئی غم، کوئی چیز ان کو پیش نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنون، کسی پاگل پر پڑھی جائیں تو اس کو تو ضرور افاقہ ہو جائے گا، یعنی وہ اچھا ہو جائے گا پاگل کے اوپر پڑھ کر بخش۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں کہ چار آیتیں سورہ بقرہ کی، 4 آیتیں شروع کی سورہ بقرہ کی 4 آیتیں الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، 4 آیتیں۔ اچھا، وبالآخرۃ ھم یوقنون تک ارے وسم میں، اور آخر کی 3 آیتیں سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد 2 آیتیں، پھر آخری سورہ بقرہ کی 3 آیتیں ارے وسم میں۔ شروع کی 4 آیتیں، کتنی آیتیں بولے تھے حضرت ابو عبداللہ ابن مسعود؟ 10 آیتیں بولے تھے، تو شروع کی 4 آیتیں ارے بس سورہ بقرہ کی، پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی، اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، آیت الکرسی کے بعد 2 آیتیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت الکرسی کے بعد سے لے کر ہم فیہا خالدون تک 1 مرتبہ، یہ 3 آیتیں، 4 1 3 7 آیتیں۔ پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، سورہ بقرہ کی سورت کی آخری 3 آیتیں، یہ 10 آیتیں کوئی بھی رات میں پڑھ لیتا ہے یا کسی دیوانے پر پڑھ کر ہمیں بخش دیے، ارے یعنی دم کر دیے، دیوانے پاگل پر دم کر دیے، یا گھر میں رات میں پڑھ لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر سے اس گھر میں جنات کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، اس گھر میں شیطانوں کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے، اس گھر میں نہ بیماری آئے گی، نہ آفت آئے گی، نہ رنج آئے گا، نہ غم آئے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ پکے یقین کے ساتھ پڑھے۔ ارے وسلم میں سورہ فاتحہ میں شفا ہے، ضرور شفا ملے گا، شرط یہ ہے کہ یقین پکا ہو، پکے یقین کے ساتھ پڑھے، اور اللہ سے کہیں کہ اللہ پڑھ تو رہا ہوں پھر بھی بیماری کم نہیں ہو رہی ہے، اللہ آپ کا سورہ سچا ہے، ہو سکتا ہے میرا جسم اس کے لائق نہ ہو، دعا کرو، ہو سکتا ہے ہمارا جسم سورہ فاتحہ کے لائق نہ ہو۔ بھائی اللہ اللہ بولنے سے دلوں کو سکون ملتا، بولتے ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھنے سے برائی سے رک جاتی کو بولتی، آنکھوں کی حفاظت کرنے سے گناہ سے بچ جاتی بولتی، پھر ہمیں اللہ اللہ کا نام لینے سے دلوں میں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ کیا اللہ اللہ کے نام میں لذت نہیں ہے، سکون نہیں ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا ہو سکتا؟ پھر کیا مطلب اس کا؟ ڈاکٹر دوائی دیا ہے، دوائی کے ساتھ چند پرہیز کی چیزیں بھی بولتا، یہ دوائی لو، یہ چیزاں سے کیا کرو؟ پرہیز کرو، سن مارا نہیں، کچھ تو بولنا نہیں، ہاں یا نہ، مجھے سمجھنا، مجھے گھبراہٹ شروع ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہا نہیں، ہاں یا نہ بولتا رہا۔ تو دوائی دیتے وقت ڈاکٹر یہ بھی بولتا کہ یہ تیل مت کھایا کرو، گوشت مت کھایا کرو، ٹھنڈا پانی مت پیا، پرہیز بولتا نہیں، پرہیز نہیں کرے تو ہوتا دوائی کا اثر۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ دوائی کے ساتھ پرہیز بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح بخار ہے، مجھے سر میں درد ہے، بخار ہے، منہ کا سالہ پڑ گیا ہے، بریانی کی لذت معلوم ہوتی ہے؟ غلطی بریانی کی؟ کس کی؟ جسم کی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی لذت ان دلوں پر ہوتا ہے جو دل مخلوق کی محبت سے خالی ہے، وہ دل نفسانی، شیطانی، شہوانی خواہشات سے خالی ہے، ان دلوں پر کیا ہوتا ہے؟ اثر کرتا ہے، کس کا نام؟ اللہ کا نام۔ ورنہ کیسے اثر کرتا بھائی؟ دل کے اوپر پورا کا پورا نفسانی، شیطانی، شہوانی خواہشات بھرے پڑے ہیں، اللہ کا نام سے سکون نہیں مل رہا، پھر ہمیں کیا کریں؟ اللہ خود فرماتا، اللہ سنو بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون سکون پانا چاہتے ہیں تو اللہ کی یاد میں ہے سکون، اللہ کی یاد میں ہے۔ فرعون کی باندی ماشطہ، فرعون کی بیٹی کی سر کی کنگھی کرنے والی عورت،
2 बच्चे कड़ी में पक गए, खुद भी मर गई, लेकिन अल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार हुई। हाँ, ये तो है लज्जत अल्लाह के नाम की। हजरत आसिया फिरौन की बीवी मुल्क छोड़ डाली, फिरौन बादशाह को छोड़ डाली, उसके महल को छोड़ डाली, ऐशो आराम को छोड़ डाली। क्या कहने लगी? रब्बी बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह सब छोड़ डाली, बस मुझे तेरे करीब घर दे दे। बड़ी जबरदस्त दुआ कर डाले हजरत आसिया। हम ना सिखाने के वास्ते अल्लाह वो दुआ भी कुरान में रख डाला कि ऐसी दुआ करो, रब्बी बिनी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत में करीब, तुम्हारे करीब घर दिया लो। तो अब अल्लाह से करीब सबसे ज्यादा कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी से निकाह कराता है। क्या दुआ नहीं? ये तो है लज्जत अल्लाह के नाम की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्या पढ़ने लगे? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसना पढ़े। सहाबा जंगों में हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते रहे। हजरत हाजिरा को जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मक्के की गैर दी जरा जमीन पर, यानी हरियाली ने इस जगह पर, पानी ने इस जगह पर छोड़ा गए रात में, हजरत हाजिरा पूछ रही थी कि आप मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जा रही? तो हजरत इब्राहिम को अल्लाह का हुक्म था कि बात नहीं करना, बच्चे को और बीवी को बीच जंगल में छोड़कर चले जाना। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं बोले। 3 मरतबा पूछे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं बोले। तो उस वक्त हजरत हाजिरा पूछने लगी, इदन अल्लाह अमारा की बिहादा, क्या अल्लाह तबारक व तआला इसके बारे में तुमने हुक्म दिया? अमारा का बिहादा, क्या अल्लाह तबारक व तआला तुमको इसके बारे में हुक्म दिया? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस तरह अपनी मुंडी हलाए, अपनी गर्दन हलाए। तो उस वक्त हजरत हाजिरा कहने लगी, इज़न ला युज़य्युना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अब मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं, अब मेरा अल्लाह मुझे ज़ाय नहीं करेगा, अल्लाह मेरे लिए काफी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मज़म दिया नहीं। हाँ, क्या हुआ हजरत हाजिरा को? भाई हमें हमारे घर वाले को या हमारे अम्मी को कांदो चढ़ा को भेज डाले, उतर को जाको घर में बैठने तक भी फोन करो फोन करो फोन करो बोलते रहती। हालांकि लोग आ रही, बस में लोग आ रही, हर जगह आदमी आ रही, क्या भी जंगल भी नहीं, क्या भी नहीं। कितनी घबराहट महसूस हुई रहेंगे हजरत इब्राहिम को, कितने फिक्र हुई रहेंगे अपनी बीवी के बारे में। इसलिए अल्लाह फरमाता व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन, जब हमने इब्राहिम को आजमाया तो अपने अपने इम्तिहान में क्या हो गए? पूरे पास हो गए। कैसे आजमाइश हम भी, बच्चे को और बीवी को बीच जंगल में छोड़कर जाना, और वो बीवी देखो कितनी मजबूत, कितने पक्के ईमान वाली। कहने लगी अगर मेरे अल्लाह का हुक्म है तो मैं यहाँ रुकने के लिए तैयार। रुक गई। मस्जिद में अकेले सो जाओ ना, आज नौजवानों को नहीं मोड़ना, हमें क्या कि सुने ही जिन्ना को उठा ले जाको बड़ी को बस सुलाल देंगे तना, जिन्ना को उठा ले जा खबर सामने सुलाल देंगे तना कि दरबार किसका भाई? ये हालत आज हमारी। अकेली गली में रात के 12 बजे चलोगा ना देंगे। एक औरत जात होकर, एक हाथ में बच्चा है, उस बच्चे को लेकर कहने लगी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रातों में आवाजें आ रही थी तो जोर से डंडा लेकर ऐसा खड़ा करके कहने लगी, तुम ना मालूम है मैं कौन हूं? मैं इब्राहिम की बीवी हूं, इस्माइल की अम्मा हूं, अल्लाह के हुक्म से यहाँ ठहरी हूं। तो मौलाना मक्की साहब कहने लगे कि बाकायदा रात में पूरे के पूरे जानवर को गोल बढ़ गए थे पहरेदारी में। दूसरे दिन जमजम। ये तो है लज्जत। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पूछा गया, बीमारी के दिन अच्छे थे, सेहत के दिन अच्छे थे? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे बीमारी के दिन अच्छे थे। कौन से अच्छे थे? क्यों? इसलिए कि बीमारी के दिनों में अल्लाह की तरफ से एक आवाज आती थी कि अय्यूब कैसे हैं, क्या हाल है? जब से अच्छा हो गया हो तब से आवाज ही चाह रही है अल्लाह की। ये इतना है लज्जत। भाई जिसे जो दिल को आता नहीं उन्हें उससे ज्यादा करीब होता। दिल को जो चीज भाती नहीं आदमी उससे ज्यादा क्या हो जाता है? करीब चला जाता। बीवी से मोहब्बत है भाई, बीवी से करीब होता कि नहीं? दूर भाग जाता कि? माँ से मोहब्बत है, माँ से करीब होता कि दूर भाग जाता कि? दुकान से मोहब्बत है, चीज़ों से मोहब्बत है, एक्टरों से मोहब्बत है, फिल्मी एक्टरों से मोहब्बत है,
हाँ, स्पोर्ट्स मैन से मोहब्बत है। किन से मोहब्बत रहती है कि उनके फोटोआ, उनके स्टेटसा, गाड़ियों के पीछे घरा में फोटोआ है कि नहीं, करीब होता कि नहीं। जब हर मुसलमान ये कहता है कि मैं अल्लाह से दिल से मोहब्बत करता हूं, तो फिर करीब कहां हो रहा है अल्लाह से? या तो अपनी बात में झूठा है, या ना तू समझ रहा है कि अल्लाह मोहब्बत के लायक नहीं, नऊज़ बिल्लाह। ऐसा हो सकता है? तो अल्लाह से मोहब्बत नहीं है, यानी तो झूठ बोल रहा, तो झूठ बोल रहा है, यानी तो अल्लाह मोहब्बत के लायक नहीं, नऊज़ बिल्लाह। ऐसा हो सकता है? कितने वाकयात मौजूद है भाई। फिर अल्लाह का नाम लेने में क्या हो गया? अल्लाह को जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है उसका नाम कितनी मरतबा लिया जाता, नहीं मजा आ जाता है। अरे बस मिसाल के तौर पर एक मरतबा मजनून बैठा हुआ था, लोग जाकर करीब जाकर देखने लगे तो मट्ठी में लैला लिख रहा है, मिटा रहा है, लैला को लिख रहा है, मिठा रहा है, लैला को लिख रहा है, मिठा रहा है। कहीं को तो उसे अकेले में भी जो चीज उसे तसल्ली दे रही है वो चीज क्या है? लैला का नाम मिट्टी में लिखना, लैला को देखना नहीं, लैला का नाम मिट्टी में लिखना, उसे सुकून महसूस कर रहा है। ये तो है मोहब्बत अल्लाह से, कि जहां कहीं भी रहो अल्लाह से मोहब्बत करो। मतलब क्या? अल्लाह के हुक्म को बजा लाओ। रात की तन्हाइयों में क्या हुक्म है अल्लाह का, दिन के उजाले में क्या हुक्म है अल्लाह का, दुकानों में क्या हुक्म है अल्लाह का। बात लंबी हो रही है। अरे बस सब में तो अल्लाह के नाम में नहीं है, वो हमारे अंदर है। सो अल्लाह के नाम में सुकून है, सूरह फातिहा में सुकून है, सूरह बकरा में सुकून है, लेकिन असर क्यों नहीं हो रहा है? हमारा जिस्म लायक नहीं है। तो अल्लाह से दुआएं करो कि अल्लाह, जैसा आप तो बोल दिए कि सूरह बकरा पढ़ो, आपकी नबी की ज़बान से हम सुने हैं कि सूरह बकरा पढ़ने से बीमारी का असर नहीं होता, सूरह बकरा की 10 आयतें पढ़ने से बीमारी का असर नहीं होता, जादू का असर नहीं होता, जिन्नात का असर नहीं होता। अल्लाह पढ़ रहा हूँ लेकिन असर नहीं हो रहा है। मालूम ऐसा हो रहा है कि अल्लाह मेरा जिस्म इसके लायक नहीं है, अल्लाह मेरे जिस्म को लायक बना दीजिए अल्लाह। ऐसा दुआएं करो भाई। सूरह फातिहा को पढ़ पढ़ को दम कर को पीते रहो, इलाज भी करते रहो, दवा भी लेते रहो, दुआ भी लेते रहो, क्या होगा इंशाअल्लाह। आज हर आदमी बीमारी की शिकायत कर रहा, हर आदमी तकलीफ और रंज मुसीबत जादूगिरी इसके उसके बातें कर रहा, हर आदमी बातें कर रहा। कोई एक दिखाओ मुझे जो ये कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूं। किसी से भी पूछो, मालदार से भी पूछो, बेपा ठंडा है करा होना, गरीब से पूछो पैसे बिल्कुल नहीं करा। अब पूछे तो पूछे, किसे पूछे? औरत भी परेशान, मर्द भी परेशान, बच्चे भी परेशान है, बड़े भी परेशान है, सब फ्रस्ट्रेशन में चले। सुकून नहीं है। सुकून कैसे मिल सकता है जब दिल में अल्लाह ही ना हो? अरे बात समझ में आएगा भाई, बात समझ में। इसीलिए शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह अहकाम और मसाइल के बारे में शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है सूरह बकरा में 1000 अम्र हैं, यानी हुक्म अल्लाह तबारक व तआला 1000 अम्र यानी 1000 हुक्मान दिया है अल्लाह तबारक व तआला, और 1000 नहीं 1000 कामों से अल्लाह तबारक व तआला रोका है सूरह बकरा में 1000 कामों से, और 1000 हिकमतें, 1000 खबरें, 1000 किस्से अल्लाह तबारक व तआला बयान किया है, खबरें और किस्से। और इसी तरह कुर्तुबी और इब्ने कसीर में यही वजह है कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सूरह बकरा को तफसीर के साथ पढ़ा तो 12 साल पढ़े हजरत उमर रज़ियल्लाहु सूरह बकरा को तफसीर के साथ, यानी उसके तर्जुमे के साथ, उसके मतलब के साथ, उसके मवानी के साथ पूरा पढ़े। कितने साल पढ़े? हजरत उमर रजी अल्लाह ने कितने साल पढ़े? 12 साल। हालांकि बड़े 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 उलमा में शुमार था हजरत उमर का, पढ़े लिखे में शुमार था। बाद साहबा पढ़े लिखे नहीं थे भाई, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह उन लोगों में शुमार था हजरत उमर का जो पढ़े लिखे थे, पहले से थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह पहले से थे, पढ़े लिखे थे। ऐसे हजरत उमर रजी अल्लाह ने कितने साल पढ़े सूरह बकरा? 12 साल पढ़े। और इसी तरह अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में आया है कि सूरत 8 साल पढ़ेगा तो पूरे मतलब के साथ, मवानी के साथ, यानी इतनी जबरदस्त सूरत है। कौन सी? सूरह बकरा। सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा, मैं तो बोल दिया कि सूरह फातिहा पूरे कुरान का खुलासा अल्लाह तबारक व तआला पूरा का पूरा कुरान बुनियादी तौर पर उसमें बयान कर डाला है। ये क्या? रुबूबियत, अल्लाह तबारक व तआला ही पालने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला ही पालने वाला है। हर एक को पालने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। पूरे आलमों को कहते,
पूरे आलमों को पालने वाला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला सूरह फातिहा में आ गया। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला ही इबादत के लायक है। इबादत के मुस्तहिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। अरे बस में तीसरा, हिदायत की दुआ करे, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत को तलब करे। तो एक तो रुबूबियत, दूसरा अल्लाह तबारक व तआला इबादत के लायक, तीसरा हिदायत की दुआ करे। जब हिदायत की दुआ करे अल्लाह से कि अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलाइए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह तबारक व तआला अब दुआ सुन लिया। अब अल्लाह तबारक व तआला बंदे पूछे को अब हिदायत का रास्ता बता रहा, अलिफ लाम मीम, यहाँ से शुरू हो। जो तुम्हें हिदायत की दुआ करनी है वो हिदायत तुम ना अब यहाँ से शुरू हो रही है। अब जो जो भी बातें आती हैं उस पर अमल करो, तुम ना हिदायत मिल जाएगी। तुम्हें दुआ करने में अल्लाह तबारक व तआला, इसलिए सूरह फातिहा के खत्म होते फौरन किसे लाया गया? सूरह बकरा को लाया गया। कहेगा तो सूरह फातिहा में बंदा दुआ करे नहीं, अल्लाह सीधा रास्ता दिखाओ को। अब सीधा रास्ता दिखाना ना, भाई मैं आपको पूछा नूर सीधा रास्ता दिखाओ, वो दिखा तो बोला को नूर चले गए, मैं खड़े को छू सीधा रास्ता दिखाती हूँ, होता सीधा रास्ता दिखाओ कहता मुलाल की जग दिखाना नहीं हो। मैं पूछा नूर दिखाई नहीं होता, तो हमें अल्लाह से बोले कि अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह खुद हमारी जबान से बोलने कर आ रहा है, दुआ करो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखलाओ। तो अब अल्लाह तबारक व तआला बोल रहा चलो ये सीधा रास्ता। अब जो आ रहे हैं ना बारजो, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, ऐसे जो सूरत आ रही है हम लगातार, ये हिदायत का रास्ता, इस पर अमल कर लो, कहाँ जाती है? हिदायत के रास्ते पर आ जाती। सूरह फातिहा में मैं बोल दिया था कि सिर्फ कुरान पढ़ को, सिर्फ कुरान को अपनी अकल से पढ़ को, अपनी अकल से समझ को, मैं हिदायत पर आ गया को धोखे में पढ़ने को। कुरान मुहक्किक मुफस्सिर उलमा हक से क्या करो? हासिल करो, और मतालिब माने उलमा हक से आर्य भाषा में लेने की कोशिश करो। अपनी नाकिस अकलों से क्या करो ना को, सिर्फ कुरान को पढ़ को मुझे पूरा दिन समझ में आया को बोलना कहेगा। तो मैं बहुत सारी मिसालें भी सूरह फातिहा के इसमें दिया था कि सिर्फ अपनी अकलों से कुरान समझने की कोशिश करे गुमराह हो जाते अरे भाषा में। इसलिए हमेशा कलामुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह भी जरूरी है। कलामुल्लाह के साथ रिजालुल्लाह यानी अल्लाह के आदमी, अल्लाह के दोस्त, वो कौन? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। इनको ढूंढना हमें, इनको ढूंढे तो कुरान के मतलब मानी सब समझ में आती, अरे बस में उस पर अमल करने में आसानी रहती। अपनी अकल से गए गुमराह होती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान को भी उतारा, कुरान के साथ कुरान के समझने वालों को भी अल्लाह हमने भेजा, अरे बस हमारे पास भेजा ताकि हम गुमराह ना हो सके। इसलिए भाई इतने लाखों करोड़ों मदरसे, इतनी सारी मस्जिदें, इतनी मस्जिदों में इतने बयानात क्यों होते? सो कल क़यामत के दिन कोई ये नहीं बोल सके कि अल्लाह मुझे मालूम नहीं था। यूट्यूब भी, फोन भी, हर बसर में ये भी एक गवाही, ताकि अल्लाह मुझे मालूम नहीं था, टेक्नोलॉजी का ज़माना था, अल्लाह मुझे कैसा इल्म हासिल करना मुझे मालूम नहीं था। तो अल्लाह बोलता कितने मेरे नेक बंदे थे जो कुरान की तफसीर किया करते थे, जो हक बात बताया करते थे, मोबाइल में दिन भर बैठता था। तो एक बार तो बोल दिया होता कि इस सूरह की तफसीर क्या है, सूरत का मतलब क्या है, तो तुझे ढेर सार मिल जाते तकरीरा बयाना सभी। तो बच सकते नहीं, बहुत मुश्किल है अब के ज़माने में बचना। टेक्नोलॉजी आ जाओ को हर चीज़ में हम ना फंसा को छोड़ डाली, अब हम बोल को बच सकते नहीं। भाई उस ज़माने में मेराज को तो मानते थे कौन तो भी, आसमानों पर जाना भी 1400 साल पहले सिर्फ क्या थी? सवारी, ऊंट, खच्चर, घोड़ा, अरे बस में गधा, इतना ना नया क्या तो था। तो मेराज मानना होता था, हाँ। लेकिन आज के ज़माने में रैकेट है, फ्लाइट है, हेलीकॉप्टर है, जेट है, कितने कितने चीज़ें आई, आज मान्य होता है, होता है क्योंकि तो अल्लाह चीज़ ऐसा पैदा कर देना। पहले लोग कहा करते थे भाई लोहे से क्या काम हो सकता है, खाली तलवार बनती है, ज़रा बनती है, ढाल बनती है, होता। आज लोहे से कितने काम हो रही है। अल्लाह बोलता रहता वांज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िअ लिन्नास। सहाबा परेशान थे, लोहे से क्या फ़ायदा होने वाला है? 1400 साल के बाद आज हो रहा नहीं लोहे का फ़ायदा। उस ज़माने में सिर्फ तलवार बनते थे भाई, ढाला बनते थे, होता। दूसरा क्या बनता था? आज कितना बन रहा है लोहे से। अल्लाह तबारक व तआला फरमाने लगा कि सवारियाँ अजीब अजीब आने लगेंगी, कुरान की आयत है वो, सवारियाँ अजीब अजीब आने लगेंगी। तो साहबा परेशान होते थे, है 4-5 सवारियाँ, अभी कौन से सवारियाँ आने, लेकिन आज आ रही नहीं।
कुरान 1400 साल के वास्ते नहीं, कुरान क़यामत तक के लिए उतरा है। अरे वसद में तो आजकल टेक्नोलॉजी आपको हमने हर चीज़ भी वाजी करा रही है। मोबाइल में एक वीडियो थक्का फिक्का हो जाता आदमी, अल्लाह बोल रहा है फमै यारा दिखा तो मैं, यानी हर चीज़ आज अच्छी तरह समझ में आती है। अल्लाह की हक्कानियत, अल्लाह तबारक व तआला की खुदरत, अल्लाह तबारक व तआला की बादशाहत अच्छी तरह समझ में आ रही है। अरे बसद में इसलिए हमें दुआ करे, अल्लाह फौरन हमना रास्ता दिखा रहा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। तो अब ज़ालिका से अल्लाह तबारक व तआला वो शुरू कर रही। इसी तरह देखो इस सूरत, इसके बाद इस सूरत में अव्वल ईमान के बुनियादी उसूल, तौहीद ये मैन हमारा, रिसालत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ज़रूरी, आखिरत इजमाली तौर पर, यानी सूरह बकरा में पहले शुरू में क्या करती है अल्लाह तबारक व तआला तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में, आखिरत के बारे में ऊपर बोलती तफसीली तौर पर, इजमाली तौर पर। और आखिरी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला मुफस्सल बोलती, यानी खोल कर समझाती इस सूरत में। और दरमियान में ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे हैं, जैसे इबादत थी, मुआमलात थी, मुआशरत है, अखलाकियात थी, इस्लाह वगैरह है, जो बातिन के एतबार से भी हैं, ज़ाहिर के एतबार से भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस सब को बयान करेंगे कहाँ? सूरह बकरा में। शुरू में अल्लाह तौहीद, रिसालत अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में, आखिरत के बारे में थोड़ा बोलेंगे अल्लाह तबारक व तआला, लेकिन आखिर में जाकर सूरह बकरा के आखिर में अल्लाह खोल कर समझाएंगे। अरे बसद में दरमियान में अल्लाह तबारक व तआला मुआशरत, मुआमलात ये सब बयान करती है अल्लाह तबारक व तआला। घरेलू ज़िंदगी कैसा, बाहर की ज़िंदगी कैसा, मामलाती ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी, व्यापार की ज़िंदगी, अखलाक क्या, इस्लाह का तो क्या, ये सब बयान करती है अल्लाह तबारक व तआला। अरे बासद में अब है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। इस किताब में कुछ शक नहीं, राह बतलाती है डरने वालों को। अलिफ लाम मीम इस किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम का माना ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं, इनका इल्म सिर्फ अल्लाह को था। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी को भी मालूम कराया था, बस होता। इसका इल्म सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को भी मालूम नहीं है। शुरू में आती है अलिफ लाम मीम, हा मीम, यासीन, ऐसा आती नहीं, नून, काफ, काफ, हा या आइन साद, ऐसे कुरान के सूरह के शुरू में आते रहती। इसे कहती हुरूफ़ मुक़त्तआत, काट कर पढ़ने वाले हुरूफ। देखो अलिफ लाम मीम, अलिफ को अलग पढ़े, लाम को अलग पढ़े, मीम को अलग पढ़े, है कि नहीं? तो इसे काट कर पढ़ती, लेकिन इसका माना अल्लाह के अलावा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को मालूम नहीं। ज़ालिकल किताब, इस किताब में कुछ शक नहीं, इस किताब में कुछ भी शक नहीं। शक निकालने वाले निकालने के वास्ते पूरी जिंदगी बैठ कर शक निकालने की कोशिश करे, डाउट निकालने की कोशिश करे तो खुद मर जाती, लेकिन इसमें शक नहीं निकाल सकते। जैसा अल्लाह हर ऐब से पाक है, अल्लाह का कलाम भी हर ऐब से पाक है। इसीलिए बाज़ उलमा फरमाते हैं कुरान की कसम खाना भी जायज़ है, इसलिए कि कुरान अल्लाह की सिफत है। कुरान समझना ये बात है, कुरान अल्लाह की सिफत है, तो अल्लाह की सिफत की कसम भी खा सकती ना, तो कुरान की कसम भी खा सकते हो। उलमा फरमाते हैं, कई दिन पहले मुझे मालूम नहीं था, अल्लाह माफ़ फरमाए, मैं बोल दिया था कि कुरान की कसम नहीं खा सकते, लेकिन कुरान की कसम भी खा सकते हैं, इसलिए कि कुरान ये अल्लाह की सिफत है, यानी अल्लाह का एक अल्लाह तबारक व तआला की निकली हुई बातें है कुरान, अल्लाह तबारक व तआला की निकली हुई बात है कुरान। तो एक तो मैं बोला था ज़ालिका दूर के लिए आता, ज़ालिका दूर के लिए आता, हाजा नज़दीक के लिए आता। कुरान अब हमारे सामने है तो हाजा बोलना था, क्या बोलना था? हाजा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला बोल रहा है ज़ालिका। तो अल्लाह इशारा करना चाह रहा है कि देखो इहदिना सिरातल मुस्तकीम पूछे नहीं तुम्हें, तो अब मैं वो किताब दे रहा हूँ जो तुम्हें पूछे थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। तुम्हें ना पूछे सीधा रास्ता बताओ अल्लाह को, अब सीधा रास्ता जो पूछे थे वो सीधा रास्ता ये था। अरे बासद में वो सीधा रास्ता जो तुम्हें पूछे थे वो चाहिए। अरे बासद में दूसरा इसका मतलब बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ज़ालिका से मुराद सहाबा, ज़ालिका से मुराद सहाबा, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से कुरान उतरा है तो ये कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बातें। जिस तरह अल्लाह पाक है हर ऐब से, इसी तरह अल्लाह की बातें भी हर ऐब से पाक है। तो कलामुल्लाह क्यों? ये अल्लाह की तरफ से उतरा है, कलामुल्लाह यानी अल्लाह की बातें। कुरान क्यों?
قرآن کریم کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے پڑھے ہیں، پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کا معنی کیا؟ پڑھی جانے والی کتاب۔ پھر اسے کتاب اللہ کیوں بولتی؟ کتاب کیوں بولتی؟ اس لیے کہ یہ لکھی جانے والی کتاب۔ دیکھو اللہ بولا، ہمارے نبی پڑھے، صحابہ لکھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ ذالک الکتاب، جو کتاب صحابہ لکھنے والے ہیں، نبی پڑھنے والی کتاب چھوڑو، کیوں؟ نبی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی برحق ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے، یہ بھی برحق ہے، لیکن لوگ شک کریں گے کس میں؟ صحابہ کی زندگیوں میں شک کریں گے، صحابہ کی معاملات میں شک کریں گے، صحابہ کے کاموں میں شک کریں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لفظ بھی لایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں ذالک الکتاب، وہ کتاب جسے صحابہ بھی لکھیں گے، جسے صحابہ جمع کریں گے۔ حضور تو جمع کریں نہ، قرآن حضور جمع کریں؟ اللہ جمع کر کو کتاب دیا؟ نہیں، صحابہ جمع کرے تو کوئی یہ شک نہ کرے کہ حضرت عثمان جمع کریں، حضرت عمر ذریعہ بنے، حضرت ابو بکر ذریعہ بنے، حضرت عثمان ذریعہ یہ کرے، حضرت زید ابن ثابت جو کاتب وحی تھے عرب اسد میں، انہوں جمع، ایسا کچھ بھی شک نہ آئے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، قرآن میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو راہ دکھاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف اللہ سے ڈرنے والوں کو کچھ کیا راستہ دکھاتی سو؟ نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کچھ نہیں، بلکہ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن سب کے لیے ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بھی ہے، مومنین کے لیے بھی ہے، مسلمین کے لیے بھی ہے، گنہگاروں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مشرکوں کے لیے بھی ہے۔ جو جتنا حاصل کرنا چاہتا اتنا حاصل کر سکتا، ارے بس۔ لیکن متقین کو خاص کرنے کا وجہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں۔ اس سے بھائی بات سننا ہے، بلکہ بتلانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین جو ہوتے ہیں وہ قرآن سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ جو ایک تو اللہ کی محبت بھی، ایک تو اللہ کا خوف۔ اللہ کی محبت تو رہنا، نہیں تو اللہ کا خوف تو بھی رہنا، دو چیزیں بھی نہیں کہ تو بیکار۔ ارے بات سب میں تو اللہ سے ڈرنے والے 24 گھنٹے فائدہ اٹھاتے قرآن سے، ایمان والے ہی، ارے بات سب، لیکن اللہ کا ڈر خوف نہیں ہے تو انہوں قرآن کو چھینتے بھی نہیں۔ آج کتنے سارے ہیں جو 5 وقتہ نماز پڑھتی، مسجدوں میں جا کو با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ پڑھتی، سنت مؤکدہ کی پابندی کرتی، تہجد کی پابندی پڑھتی، لیکن قرآن اٹھا کو کبھی پڑھتےش نہیں۔ کیوں؟ پڑھنے کی کتاب نہیں وہ، اور ان کو آتا بھی نہیں۔ تہجد پڑھتی، نمازیں پڑھتی، سنت مؤکدہ پڑھتی، لیکن قرآن پڑھنے آتاش نہیں۔ کتنی بڑی محرومی نہیں ہے؟ اسی لیے ڈرنے والے زیادہ تر کیا ہوتی؟ فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن سے۔ ارے بات سب میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی ڈاؤٹ کرو نہ کو، اس لیے کہ جس کتاب میں شک آ جاتا ہے، شبہ آ جاتا ہے، لوگ اسے حاصل کرنے میں، لوگ اس پر عمل کرنے میں تھوڑا جھجکتی، شرماتی کہ کیا بھائی تھوڑا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بول دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، جو بھی باتیں پوری حق ہیں۔ ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کو کیا کرتی ہے؟ راہ بتلاتی ہے۔ تو اب اللہ سے ڈرنے والے کون کون ہی، ان کے صفات انشاءاللہ زندگی باقی تو بات بھی باقی۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے معانی اور تفسیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے، شریعت کا طریقت کا دکانیں